Jai Mata Di friends, welcome back to my channel Study with Jyoti. Today we will start first exercise of chapter 8 trigonometry of class 10. So let's get started with question number 1. In triangle ABC, right angled at B. Take a triangle ABC which is right angled at B. AB equals to 24 centimeter, BC equals to 7 centimeter. Then determine the value of these functions. एक ट्राइंगल गिवन है बेटा ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी, एंड वैल्यूज ऑफ ए बी एंड बी सी आर गिवन. सो यू हैव टू डिटरमाइन फर्स्ट द वैल्यू ऑफ साइन ए. अब देखिए बेटा, आपको साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है. दैट मीन्स हियर एंगल इज ए. आप एंगल किसे कंसीडर करेंगे? ए को. व्हेन ए इज द एंगल, दैट मीन्स साइड अपोजिट टू एंगल इज perpendicular. Okay, and side adjacent to angle is base, and side opposite to right angle is hypotenuse. Okay beta, so here base is AB, perpendicular is BC, and AC is the hypotenuse. And we know that sin theta is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular की value given है बेटा, so we will find the value of hypotenuse. Base and perpendicular is given, so you can easily find the value of hypotenuse using Pythagoras theorem, because triangle ABC is a right angle triangle. So we will apply the PGT in triangle ABC by Pythagoras theorem. So according to Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. Now hypotenuse is AC square equals to base square. Base is 24. So 24 whole square plus perpendicular square. That means 7 square. Now 24 whole square is 576. 7 sevens are 49. So 576 plus 49. It will be 625. That means AC square equals to 625. So AC equals to square root of 625. ये बेटा यहाँ पे स्क्वायर है, जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट. एंड वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25. सो वैल्यू ऑफ AC विल बी 25 centimeter. Got it beta? Now we have to find sin A, and we know that sin theta is perpendicular upon hypotenuse. सिंपल सी ट्रिक लर्न रखनी है बेटा आपको. पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल. Okay, so S is for sin theta, C is for cos theta, and T is for tan theta. Okay beta, so sin theta is perpendicular upon hypotenuse. That means sin A is perpendicular upon hypotenuse. Now perpendicular is BC and hypotenuse is AC, so it will be BC upon AC. So value of BC is 7 centimeter and hypotenuse is 25 centimeter. So it will be 7 upon 25. Okay. Now cos A. So what is cos theta? Cos theta is base upon hypotenuse. Now base is AB and hypotenuse is again AC. So AB will be 24 centimeter and AC is 25. So cos A will be 24 upon 25. Okay beta. Next you have to find sin C. Firstly आपने क्या find किया बेटा? sin A. अब आपको क्या find करना है? sin C. फॉर्मूला सेम रहेगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट वैल्यूज चेंज हो जाएंगी बिकॉज एंगल चेंज हो रहा है बेटा. फर्स्टली आपने एंगल किसे कंसीडर किया था? ए को. नाउ यू हैव टू कंसीडर एंगल एज सी. अब आप किसे करेंगे एंगल कंसीडर? सी को. और जब बेटा सी को एंगल कंसीडर करेंगे, दैट मीन्स साइड एडजेसेंट टू एंगल विल बी बी सी. नाउ बी सी इज द बेस एंड ए बी इज द परपेंडिकुलर. ओके, तो अपनी ईज के लिए बेटा आप अलग से फिगर ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें कि आप बेस और परपेंडिकुलर को मेंशन कर देंगे. ओके, नाउ वी विल टेक सी एज angle. Okay, so sin C is perpendicular upon
hypotenuse. So what is the perpendicular now? It is 24 centimeter and hypotenuse will be the same. So it will be 24 upon 25. Got it, beta? And next we have to find cos C. So cos theta is base upon hypotenuse. So what is the base now? 7 सेंटीमीटर. पहले बेस क्या था बेटा? 24 सेंटीमीटर जब आपने ए को एज एंगल कंसीडर किया था. नाउ बेस इज 7 सेंटीमीटर बिकॉज साइड एडजेसेंट टू एंगल सी इज BC. So it will be 7 upon 25. Listen बेटा, कंफ्यूज होने की नीड नहीं है. यू हैव टू ओनली रिमेंबर द ट्रिक. पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल. Sin theta, cos theta, tan theta, and cot theta, sec theta, cosec theta will be their reciprocals. First thing. सेकेंड थिंग, आपको ये चेक करना है बेटा, आपको जो फंक्शन फाइंड करना है उसमें एंगल क्या गिवन है. जो एंगल है उसके अकॉर्डिंग ये बेस और परपेंडिकुलर मेंशन करेंगे. ओके. एंगल चेंज होने के साथ बेटा बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज चेंज होंगी. ओके. स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगेगा बेटा, बट एक दो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r. सी बेटा, फिगर में क्या गिवन है? अ राइट ट्राइंगल PQR विच इज राइट एंगल्ड एट Q and value of PQ and PR is given. So firstly we will find the value of QR using Pythagoras theorem. Okay. So in triangle PQR by Pythagoras theorem, PR square equals to PQ square plus QR square. PR square equals to PQ square plus QR square. Now value of PR is 13. So 13 whole square equals to PQ is 12. 12 whole square plus QR square. पाइथागोरस अप्लाई कर दिया आपने बेटा. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो स्क्वायर ऑफ 13 इज 169. 12 whole square 144 plus QR whole square. Okay. So 169 144 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा तो प्लस 144 विल चेंज इनटू माइनस 144 विच इज इक्वल्स टू QR होल स्क्वायर. नाउ 169 माइनस 144 25. So QR square equals to 25. This implies QR equals to square root of 25 and we know that square root of 25 is 5. वैसे तो बेटा जब स्क्वायर रूट आप फाइंड करते हैं तो वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आती हैं, बट क्योंकि बात ट्राइंगल की हो रही है बेटा और साइड जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, दैट्स व्हाई वी आर इग्नोरिंग -5 एंड टेकिंग ओनली +5. ओके. सो वैल्यू ऑफ QR इज 5 सेंटीमीटर. गॉट इट बेटा. नाउ सी यू हैव टू फाइंड tan p माइनस cot r. दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बेटा एंगल की वैल्यू चेंज है. ओके. और जब एंगल की वैल्यू चेंज है बेटा तो दैट मीन्स दोनों में परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू डिफर करेंगे. ओके. सो फर्स्ट वी विल फाइंड tan p. वी नो दैट tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. बस क्या याद रखना है बेटा आपको? ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र. पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तो. ओके. नाउ tan theta is perpendicular upon base. Clear है बेटा? Perpendicular upon base. When we will take P as angle. अब tan P के लिए बेटा आपको एंगल किससे कंसीडर करना है? P को. That means now base is PQ and perpendicular is QR. Okay. So value of tan P is perpendicular upon base. That means 5 upon 12. Got it बेटा? Now we will find cot R. कॉट आर. दैट मीन्स अब एंगल आपको किसको कंसीडर करना है बेटा? आर को. सी बेटा व्हेन यू हैव टू फाइंड कॉट आर, नाउ टेक आर एज एंगल. ओके.
And when you take R as angle, that means side adjacent to R is QR. Now this will be the base and side opposite to angle is perpendicular. So cot R will be base upon perpendicular. Cot theta beta reciprocal है tan theta का, that means it will be base upon perpendicular. Okay, and now base is QR and value of QR is 5 centimeter upon perpendicular is PQ and value of PQ is 12. Got it beta? So values आ गई बेटा tan P and cot R की. Now we have to find tan P minus cot R. ओके, सो दोनों की वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे. गॉट इट बेटा? नाउ tan p minus cot r. So value of tan p is 5/12 minus value of cot r is again it is 5/12. So 5/12 minus 5/12 is 0. Clear beta? So your answer will be 0. Question number 3. Sin a equals to 3/4. Then calculate cos a and tan a. See beta, sin a की value given है 3/4 and we know that sin theta is p upon h and sin theta is given as 3/4. तो सबसे पहले बेटा एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे. अब देखिए बेटा एंगल क्या गिवन है a. नाउ टेक अ ट्राइंगल ABC. यहाँ देखिए बेटा एंगल क्या गिवन है a. ओके, तो नेमिंग मेंशन कर देंगे ABC which is right angle at B. So P upon H is given as 3/4. That means perpendicular is 3 and hypotenuse is 4. क्या बेटा आप लिख सकते हैं perpendicular 3 hypotenuse 4? So no बेटा, ये absolutely wrong हो जाएगा. ओके, क्योंकि यहाँ पे perpendicular और hypotenuse की वैल्यू नहीं है गिवन. यहाँ पे क्या गिवन है बेटा P/H गिवन है. दैट मीन्स ये 3/4 रेशो में है. दैट मीन्स ये क्या हो सकती है 3 3 ज़ा 9 4 3 ज़ा 12. तो ये 9/12 भी हो सकती है बेटा. 9/12 भी किस रेशो में आ जाएगा 3/4 में. ओके, ये 3 2 ज़ा 6 4 2 ज़ा 8 भी हो सकती है बेटा. ये अगेन किस रेशो में आ जाएगा 3/4 के. तो दैट मीन्स ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है. हम इसे किसके इक्वल लेट कर लेंगे के इक्वल. सो लेट p इज इक्वल टू 3k एंड h इज इक्वल टू 4k. तो एग्जैक्ट वैल्यूज जो होंगी बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वो क्या हो जाएंगी 3k एंड 4k. क्लियर बेटा? जैसे आप एंगल वाले क्वेश्चन में करते थे, अगर एंगल का जो रेशियो है 1:2 गिवन है तो आप क्या लेट कर लेते थे उसे 1x एंड 2x इस अकॉर्डिंग करते थे ना. तो सिमिलरली आप यहाँ पे k x y कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं. क्लियर बेटा? नाउ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज गिवन. सो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस इन ट्राइंगल ABC यूजिंग PGT. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर. नाउ AB स्क्वायर AB तो आपको फाइंड करनी है बेटा, तो इसको एज इट इज रहने देंगे. प्लस BC स्क्वायर BC इज 3k होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC इज 4k होल स्क्वायर. सो AB स्क्वायर दिस implies AB स्क्वायर प्लस 3k होल स्क्वायर मीन्स 3 3 ज़ा 9k स्क्वायर इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16k स्क्वायर. गॉट इट बेटा? नाउ AB square equals to 16k square. This plus 9k square will change into minus 9k square. लेफ्ट हैंड साइड से बेटा राइट हैंड साइड में ट्रांसफर हो रहा है. सो AB square equals to 16 minus 9 7k square 7k square. सो AB equals to स्क्वायर है बेटा, तो इस टर्म में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट. इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 7k स्क्वायर. सो विच इज इक्वल्स टू √7 k स्क्वायर का बेटा k आ जाएगा बाहर. सो वैल्यू ऑफ AB इज √7k. नाउ वी हैव टू फाइंड cos A एंड वी नो दैट cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस इज AB अपॉन
hypotenuse is AC, and AB is root 7k upon hypotenuse is AC, which is equals to 4k. So k is cancelled by k, so it will be root 7 upon 4. Okay, now 10a. And we know that tan theta is perpendicular upon base. So value of perpendicular is, perpendicular क्या बेटा 3k and base is root 7k. So it will be 3 upon root 7. Okay, k is cancelled by k. क्लियर बेटा? तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, और जो ट्रिक बताई जा रही है बस उन्हें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में अप्लाई करते जाना है. क्लियर बेटा? रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. एंड इफ यू लाइक द वे आई एम टीचिंग देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. टेक केयर ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच.